All right. Good evening, guys. So we can start. Let others join. They will join as per their availability. So good evening once again. Please confirm the screen which I have shared is visible. I am audible and this meeting is being recorded. Yes, sir. Thank you. So let's start what we are going to learn today. And I hope in our previous session we have explored the things with the feature engineering. We have seen label encoding, one-hot encoding, normalization, the standardization, and the transformation also we have seen. This part of capstone activity. So I will share the data set with you, some assignment on a real data, let's say publicly available data. I will share that assignment task with you. Let's work on those, and we will take one more session on whatever the work you have done. Otherwise, we will be taking one more session on a solution of that assignment, so that we can do. And today, let's move to the new topic of synthetic data. We will discuss more on the synthetic data. We will discuss about the scenarios also for this synthetic data, and how the synthetic data can be generated and when it is needed. But yes, before moving ahead, can you please tell me what do you know about synthetic data? Like if I ask you, like, do you know the synthetic data, or did you ever try generating synthetic data, or whatever your understanding about synthetic data? Yes, guys, you can share examples also. Definition is in front of you, but like, what is your understanding? So we will discuss on that. So yes, guys, what is synthetic data? What do you mean by synthetic data? And did you ever get chance to work on synthetic data or generate synthetic data? Yes. So it will be very helpful if you participate in this question and answering this question. So what is synthetic data? The definition is in front of you. It's okay. But what do you understand with this definition? Otherwise, I will be telling some scenarios, real time example. But yes, I just want your opinion or your understanding about the synthetic one part. Yes, yes, Amol, Vishal, Aditya. ऍक्च्युली मी एक इश्यू मध्ये आहे. मी थोडं Oh, एक okay, इश्यू आहे. okay. All right, no मी worries. आहे पण मी एक इश्यू मध्ये मला थोडं Got लक्ष it, नाही. got it, got it. Aditya, you can pitch in and just what you're Yeah, in I'm mind thinking. I'm thinking. thinking. Okay, great. Debit card payment, debit and credit card payment. Hello? We have Gaurav. Debit card and credit card payment is also a synthetic data. Example. Okay, but that is real data, na? That is real data, right? So, but yeah, like maybe if that debit card and payment related data, if we have generated, so yes, we can consider it as a synthetic. That is we can say, yeah, that is also a good example. Yes, any other try? But that was good actually. If we generated it, then definitely, and maybe it happens most of the cases, the fraud, like those who are doing fraud, maybe they are trying to generate some data related with this credit card and just a fake data, we can say. Yes, that is good example, we can say. Yes. So Vishal, Moin. Otherwise, yeah, I will continue and I will explain what is synthetic data, when it is needed, and also like when we use synthetic data in our organization. Order data also, can you consider the e-commerce order data? Okay, but means, are you talking about the real data, which is really generated, or the Ye- duplicate wala data? The real data, like Okay. on our production site, like, so we have the data. In the data, we can find out like what products, what Alright. SKU has a major customer acquisition. This type Okay. of data we can consider as a Alright. synthetic data. Okay. Okay. All right. So yeah, thanks for these answers. Like, now let's discuss on this synthetic data. Okay. So yeah, definition is in front of you guys. Synthetic data is artificially generated data. Okay, artificially generated data. Okay,
means it is a generated data, huh? That mimics the statistical properties of real world data. It's especially useful in machine learning for testing, training, and protecting privacy. Okay, so now let's discuss more on, and I will share the example where we, like in our organization, we use the synthetic data. So guys, let's say if you are building a machine learning model, all right, with your use case, whatever the problem statement you have, आपको जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे आपको एक मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना है, all right. And but if the organization tells you कि you like they will not provide a data to you, वो आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन आपको मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना है, then what will be your reaction in that case? आप क्या बोलोगे फिर? अगर डेटा ही नहीं है तो आप मॉडल कैसे बनाओगे, राइट? एंड इट हैपन्स गाइज, अगर कोई फिनटेक है या फिर लेट से गवर्नमेंट का डेटा है, सिक्योर डेटा है, विच विच पब्लिकली वी कैन नॉट एक्सपोज, पब्लिकली इन द सेंस इवन टू द एम्प्लॉइज, उस ऑर्गेनाइजेशन के अगर एम्प्लॉइज को भी अगर डेटा एक्सपोज नहीं करना है, तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? ओके, सो मे बी देर आर ब्लॉकर्स, तो एम्प्लॉइज को, मतलब हुएवर इज वर्किंग ऑन द जनरेशन ऑफ मॉडल, अल्टीमेटली दे आर डिपेंडिंग ऑन द डेटा. डेटा है तभी जाके ईडीए होगा, तभी जाके प्री प्रोसेसिंग होगा, तभी जाके फीचर इंजीनियरिंग होगा, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, एंड इन आवर लास्ट सेशन वी डिस्कस कि if data is poor, even if we are using great models to predict, our results will be, the inference will be poor if data is poor. That we have discussed. But now in such scenarios, agar data hi nahi hai and then we are asked to build a machine learning model, then how we can deal with this situation, right? So similar kind of situation हमारे organization में हुआ था, because it is a fintech domain company. We are on a product based company, and whatever our customers data, it is highly secured because we get the data from banks. Okay, so banking का जो customers का data है, तो it is highly secured. The organization is not permitted to expose that data. So how we can do this? तो उसके लिए then we started solving that using different approach, and that was a synthetic data. So synthetic data generation we started doing because we were there to build the model from scratch. And it was like 2021 जब हमारे पास ये आया था कि रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, and recommendation for insurance products, okay, and loan related products, and then additional to it, it was a health related products thing. So we were asked to generate to build the model which will recommend these kind of products to customers, but we did not have customers data. So how it was possible for us to even start EDA and pre-processing on the data? Then guys, the thing is, as it was highly secure, so there are different departments. तो जो डिपार्टमेंट्स डेटा के साथ डील करता है उनके पास ये डेटा था, हमारे पास तो सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, and then whatever the deployments and implementation was with the another team. So for that we started discussing, and then we started with this approach कि हम क्या करेंगे. We will be first identify the distribution, जैसे मैंने बोला था, देखो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो स्टैटिस्टिक्स आ गया इसमें, बिकॉज एट द एंड क्या था, मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना था डेटा पे, एंड डेटा वी डिड नॉट हैव. तो देन वी थॉट कि हम डेटा जनरेट करेंगे. ओके, सो इट वाज अ जनरेटेड डेटा मिमिक, ठीक है, द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज एज आई सेड कि जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स देखा है, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे वी कैन अंडरस्टैंड इफ डेटा like let's say what is the distribution of male in this particular region. Okay, urban region पे क्या है, रूरल एरियाज में कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द हाई पेड कस्टमर्स, उनका बैंकिंग, वो सब ईच एंड एवरीथिंग. देन व्हाट वी स्टार्टेड, हमने क्या किया फिर, वी स्टार्टेड आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा एंड बिहेवियर ऑफ द डेटा. ठीक है, तो देन वी स्टार्टेड, हमने क्या किया फिर, इट वॉज आवर पावर, तो हमको चाहिए उतना बल्क डेटा हम जनरेट कर पाए बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दिस फिगर्स इन द सेंस
हमने क्या किया, ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए। तो हमने मोस्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है मेल वर्सेस फीमेल की, क्या प्रोबेबिलिटी है जो भी प्रोफेशनल्स है दे आर फ्रॉम दिस एजुकेशन बैकग्राउंड, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सब क्वेश्चंस प्रिपेयर किया और हमने वो जिनके पास डेटा है उनको भेज दिए। फिर उन्होंने हमको टोटल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके हमें दी। ठीक है, जैसे ही वो प्रोबेबिलिटीज हमें मिली तो देन व्हाट, मेल मेल और फीमेल पता चल गया कि भाई कितने मेल है कितने, जस्ट वी स्टार्टेड जनरेटिंग मेल फीमेल। ओके, प्रोफेशन वाइज ग्रुपिंग पूछा कि क्या क्या प्रोफेशन है। सिर्फ हमारे जनरेशन में डिफरेंस क्या था कि जहां पे रियल कस्टमर्स का एग्जैक्ट प्रोफेशन जो मैच हो रहा था, हमारे यहाँ पे हमने जनरेट कर दिए थे सब डेटा। ओके, सो लेट्स से XYZ जो क्रिएटेड पर्सन है उसको वो प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास था उसके बेसिस पे हमने सिंथेटिक डेटा जनरेट किया। ऑल राइट, एंड देन फिर हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो ब्लॉक नहीं हुआ, फिर हम स्टार्ट हो गए। फिर देन EDA, उसी जनरेटेड डेटा पे हमने EDA किया। EDA करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखा, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद पाइपलाइन हमारी खत्म हो गई, नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्ड स्केलर सब अप्लाई किया, एंड देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर आवर फाइनल पर्पस। ठीक है, और वैसे करके हमने मशीन लर्निंग का मॉडल जनरेट करके वो मॉडल फिर डेवऑप्स को दे दिया, डेवऑप्स ने डिप्लॉय किया, एंड देन टेस्टिंग वाली टीम अलग थी जो रियल डेटा पे टेस्ट करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो दैट वाज द सीन गाइस। तो मे बी सच काइंड ऑफ केसेस, ठीक है, इफ एंड ये होता है जनरल, जो स्क्रैच से कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, AI के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इफ दे आर लैगिंग विद डेटा ना, दे हैव टू क्रिएट द सिंथेटिक डेटा। ऑलराइट, so that was a scenario. Learning for testing, training and protecting privacy. So I hope you got the idea कि what is synthetic data is a duplicate generated data guys, duplicate generated data, it is not real data. ठीक है, we can say mimic of real data, हाँ, and why, the reason is privacy. ठीक है, whenever you will be dealing with such organization where data is highly secure, highly like we can say maintain the privacy, that time you will not be getting the access to real data, then you have to generate the synthetic data to move on with the development of ML projects. All right, let me show practically how we develop the synthetic data, how we create the synthetic data. Okay, but before that, as I said, okay, let's discuss more on that, and those are the benefits of generating synthetic data. So as I said कि privacy preserving means what, जो डेटा आपने बनाया है synthetically, that data is no real personal data. Okay, so there are no GDPR and CCPA concerns. ठीक है, you know it's all regarding the government regulations and all. ठीक है, then data augmentation. So here we ourselves help okay, how we can augment the data, how we can generate that data so that it will be helpful for us. Okay, helps to balance classes and add diversity to limited data set. तो अभी यहाँ पे सब करता धरता अगर हम ही है, हम ही डेटा जनरेट कर रहे, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस। बट ओके, देयर आर टू सिनेरियोस गाइस। एक, जो आपको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से आया उस बेसिस पे आपको रूल्स लगा के रूल बेस्ड डेटा जनरेट करना होगा यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट। ओके, एंड द सेकंड इज, लेट्स से इफ यू आर प्लेइंग विथ न्यूली, लेट्स से अगर आपके प्रोडक्ट स्क्रैच से है, उसमें डेटा भी नहीं है, ठीक है, ये तो एक प्राइवेसी का एक रीजन हो गया। कहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें डेटा वेटा कुछ नहीं होता, स्क्रैच से प्रोडक्ट बनता है और तब जाके धीरे धीरे रियल में हम प्रोडक्शन पे डालते हैं, फिर डेटा आना शुरू होता है, फिर वो उस पे टेस्टिंग वगैरह वो सब होते हैं। बट अगर if you are dealing from scratch, then that is also one scenario कि you have to generate the data. So maybe in that case आप balance imbalance, not a proper structured data, miscellaneous values, null values वाला data भी, garbage data भी generate करके, then you will be just doing all these activities of EDA and whatever the data pre-processing feature engineering जो हमने देखा. Very important thing is cost effective. Here you don't have to depend or let's say use or real data, so it is cost effective. Using one single script you can generate data, reduces the need to collect or label massive real world data set. मतलब एक टाइम था गाइज 2020-21 में, जो टाइम था ना जब वेबसाइट पे ये मशीन लर्निंग वगैरह मतलब काफी हद तक नया था। AI तो थोड़ा थोड़ा मतलब AI वाज दैट टाइम, उस टाइम पे तो अभी का AI और उस टाइम का AI बहुत डिफरेंस था। मतलब एक छोटे लेयर पे, छोटे बेसिस पे एप्लीकेशन पे AI चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे पीपल, जो भी डेटा साइंटिस्ट थे, जो भी लोग थे जिनको इसमें इंटरेस्ट था, जो दे वेर वर्किंग ऑन दिस सर्टन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, दे वेर हंग्री, उनको डेटा चाहिए था।
ओके, डेटा वाज रेयरली अवेलेबल, रियल टाइम डेटा तो रेयरली अवेलेबल। तो होता क्या था, बहुत सारे लोग सिंथेटिक डेटा जनरेट करके ऊपर डाल देते थे, जस्ट फॉर लेट्स से कम्युनिटीज है जो लर्न कर रही है, जैसे कैगल कम्युनिटीज, देर आर डिफरेंट, तो डेटा के लिए वो उनका हमेशा दे वेर लाइक फाइटिंग फॉर डेटा, एंड देयर वेर सम पीपल हु वर इवन जनरेटिंग द सिंथेटिक डेटा। तो उसमें काफी सारे फिर वहां पे उसमें डिबेट होते थे कि ये डेटा इज डजंट लुक लाइक रियल डेटा बिकॉज दिस पार्ट इज ऐसा वैसा, वो सब चलता था। ओके, तो दैट वाज द थिंग। इवन एज आई सेड के सम ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी सिंथेटिक डेटा इज लाइक इवन इज यूज्ड फॉर बेसिक पर्पस, ठीक है। एप्लीकेशन इन मशीन लर्निंग, तो ट्रेन मॉडल्स विदाउट एक्सपोजिंग सेंसिटिव डेटा, सी प्राइवेसी, टेस्ट रॉबस्टनेस ऑफ एल्गोरिथम इन अ कंट्रोल सेटिंग। सो ओनली द डिपेंडेंसी अगर डेटा पे, अगर डेटा पार्ट हो गया तो बाकी तो एमएल मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स वगैरह उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू आर इवन फ्री टू डू इट। इवन जब हम कभी कभी देखते हैं कि यार वी वांट सम रियल डेटा टू वर्क एंड मूव अहेड, so you can even generate your data, you can create your own data and just go ahead with that. Validate system under hypothetical, see, validate system under hypothetical, hypothetical, तो हाइपोथेसिस क्या है, वी हैव अंडरस्टूड इट इन वेरी वेल मैनर। स्टैटिस्टिक्स में हमने हाइपोथेटिक अजम्पशंस बेसिस पे वी हैव हमने काफी सारा अंडरस्टैंडिंग किया है यहाँ पे। ओके, हाइपोथेसिस इन प्रोबेबिलिटीज एंड ऑल। ओके, सो एक्सट्रीम केसेस what you can do, like what you can validate system under, आप जो भी assumption से inferences से उस बेसिस पे आप कर सकते हो, और एक्सट्रीम केसेस जैसे आउटलायर्स अभी आप ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, इट इज योर चॉइस बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। थिंग्स टू कंसिडर क्या क्या है, पुअरली जनरेटेड सिंथेटिक डेटा कैन मिसलीड मॉडल, सी पुअरली जनरेटेड मतलब क्या, अगर जिस इसमें इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, बताया नहीं है कि भाई एक्चुअल रियल डेटा में किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो आपको नहीं मिलेगा इंस्ट्रक्शन, तो आप आपके assumption से अगर डेटा जनरेट करोगे तो ये मॉडल को मिसलीड कर सकता है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। इट मस्ट क्लोजली फॉलो द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल डेटा, करेक्ट, एज आई सेड स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल डेटा वो फॉलो होना चाहिए। जैसे हमारे लिए ये चीज अवेलेबल था, जो दूसरी टीम थी विच दैट टीम वाज डीलिंग विद ओरिजिनल डेटा, दे गेव अस दिस इनपुट्स बेस्ड ऑन देयर, उन्होंने क्वेरीज एग्जीक्यूट की, एसक्यूएल क्वेरीज, उसके बाद उनका कैलकुलेशन निकाला, काउंट का प्रोबेबिलिटी निकाल के हमको दे दिया कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फीचर्स, ये ऐसे ऐसे, ये इस वे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने सिंथेटिक डेटा जनरेट किया, नो मैटर ये डेटा क्या है, रियल क्या है, जो भी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल आईडीज आर वेरी लाइक प्राइवेट है, उसके बाद 4 नंबर्स थे, ये सब प्राइवेट डेटा था, बट स्टिल दे वेर नॉट लाइक परमिटेड टू गिव आवर लाइक देयर लोकेशन, कस्टमर के लोकेशन क्या है, सिटीज क्या है, ये डेटा भी हमको नहीं मिला था बिकॉज इट वाज द रियल डेटा, एंड गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बैंकिंग के जितने भी लोग थे उनका डेटा शेयर करना वाज नॉट द गुड थिंग। सो दिस वाज द थिंग गाइस, देन इट मस्ट क्लोजली फॉलो द स्टैटिस्टिकल, ये आपको बताया, ऑलवेज वैलिडेट विद द रियल डेटा वेयर पॉसिबल, मतलब क्या, वॉट एवर डेटा वी हैव जनरेटेड ना, व्हाट वी डिड, हमने ईडीए किया, ईडीए की स्क्रिप्ट उन लोगों को दे दी, तो उन्होंने ये वाले डेटा पे सेम ईडीए किया, उनका ईडीए और हमारा ईडीए का कितने हद तक मैच हो रहा है, दैट दे वेरीफाइड, एंड दिस दे उन्होंने हमको ग्रीन फ्लैग दे दिया कि ठीक है, आपने जो भी जनरेट किया है इट इज मोस्ट मोस्ट लाइकली सिमिलर टू रियल डेटा, सो यू कैन गो अहेड विथ योर मशीन लर्निंग पार्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें थी गाइस, एंड दैट्स व्हाई सिंथेटिक डेटा इज यूजफुल इन सच सिनेरियोज। Even you can also think whenever you will be getting chance to work on these kind of projects from scratch. All right, so let's practically I will practically show all these things, how synthetic data is generated. Okay, all right, so this is very ठीक है, okay, this is the one small script guys विच इज टेलिंग, तो हमने शुरू कैसे किया था, सी, तो हमने क्या किया, एक फेकर करके, अगर आप देखोगे फेकर करके एक लाइब्रेरी है विच हेल्प्स यू टू जनरेट द डेटा, फेकर, ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट इट। ऑलराइट, फेकर विच हेल्प्स यू टू जनरेट द डेटा, सी, अगर मैं यहाँ पे रैंडम डॉट्स, अच्छा दिस इज सीड रिलेटेड स्टफ, ये रैंडम सीड, इफ यू नो रैंडम सीड का, ओके, नाउ फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन कि मैंने क्या किया, पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट की, उसके बाद फिगर का एक लाइब्रेरी था उसको इंपोर्ट किया बिकॉज टू जनरेट डेटा, एंड
इंपोर्ट रैंडम किया, ठीक है। रैंडम इज जस्ट टू ब्रिंग द रैंडमनेस इन माय डेटा, ठीक है। जनरली ये जो 42 है ना, दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इफ यू आर देयर टू जनरेट एनी रैंडमनेस इन योर डेटा, स्टैंडर्ड जो है वो सीड का पैरामीटर आप पास करते हो 42। दिस इज स्टैंडर्ड, बट यू कैन चेंज लाइक एनी नंबर, बट एक स्टैंडर्ड होता है ना कि जनरली यही डिफाइन होता है। तो सीड, जिन्होंने ये सीड का जो फंक्शन बनाया लाइब्रेरी ने, इन टर्म्स ऑफ रैंडम सीकिंग वैल्यूज, उन्होंने ये स्टैंडर्ड एक 42 डिफाइन किया है, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर्स आई हैव प्रोवाइडेड 1000, आई कैन प्रोवाइड 10,000, 1 लाख, 10 लाख, एनी नंबर, ठीक है गाइस। ओके, ये एक्चुअली जस्ट दिस पार्ट इज रिगार्डिंग सीड। तो रैंडम डॉट सीड आप अगर ये सीड के लिए इसलिए बिकॉज सी लेट मी शो दिस, ये सीड बीच में आ गया इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग दिस सीड वाला पार्ट, बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट सेशन में जो मतलब पहली बैच में उन्होंने सीड के ऊपर ये पूछा था कि व्हाई सीड इज 42 ओनली, बट दैट इज डिफाइन स्टैंडर्ड। एंड गाइज ये सीड क्यों यूज करते हैं? जस्ट in terms of like you will be getting the values in a randomness. That randomness should be consistent, and that's the reason we pass the random seed, and then we use the random data, ठीक है। we use the random data, that is it. the consistency रहनी चाहिए। You can even explore on this कि seed वगैरह क्या है, but I hope here there is no issue with that, okay। So this function is generating random values in the range 1 to 50, okay, and we are passing fit। तो आपको random values generate होंगे जो भी range आप provide करोगे 1 से 50। देखो each and every, there is randomness which is consistently managed। All okay, let's move with what is our like regular। so okay, तो ये faker का library import किया, okay, and then I'm just using some random values from here to generate the synthetic data, okay, to generate the synthetic data, and then I will use in, so what I'm showing ये सब functions है। अगर let's say मुझे gender एक रैंडमली जेंडर जनरेट करने हैं, तो हमारे पास रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन है। वो क्या करता है, हर बार एग्जीक्यूशन में व्हेनेवर यू विल बी कॉलिंग ना, ये यहां से एक रैंडम वैल्यू पिक करके आपको देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, और हाँ देखो यहाँ पे रैंडम डॉट चॉइस, अगर मैं यहाँ पे तो कभी अदर देगा, कभी मेल देगा, कभी फीमेल देगा आउटपुट, ठीक है। अदर दिया, उसके बाद अदर फीमेल दिया, हाँ रैंडमली इट इज पिकिंग मेल फीमेल ऐसा देगा, ठीक है। ओके, तो so that is the use of random dot choice। so like we had to like we wanted to generate some data। ये एक फर्स्ट बेसिक वाला सिनेरियो, बट एज मैं जैसे हमने देखा कि अगर आपने पुअरली जनरेट किया है किसी सिंथेटिक डेटा तो ये मिसलीड करेगा मॉडल। तो ये जो वे है ये पुअर जनरेशन का वे है गाइस, बिकॉज हियर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया हुआ। तो कंडीशनल बेसिस पे सिंथेटिक डेटा एक्चुअली जनरेट करना चाहिए, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ फेकर। तो फेकर एक लाइब्रेरी है विच जनरेट्स अ फेक डेटा फॉर यू, ओके, बट इन बल्क क्वांटिटी आपको जनरेट होके मिलेगा डेटा। तो हमने मैरिटल स्टेटस कौन से चाहिए, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, ये सब था, ये डेटा के वैल्यूज है, उसको हमने रैंडम चॉइस से किया। देन लेट्स से कस्टमर आईडी, सो यू नो दिस UUID4 ये क्या जनरेट करता है, आपको 16 या 32 डिजिट का एक UID जनरेट करके देता है, ठीक है, विच इज द फेक जो लाइब्रेरी है उसका ये फंक्शन है। आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब फेक जनरेट करके देगा, ठीक है। ये जनरेट जेंडर फंक्शन यूज किया है बिकॉज ये क्या रैंडमली यहाँ से एक वैल्यू पिकअप करके यहाँ पे पास करेगा, और ऐसे करके व्हाट वी हैव डन, हमने जो भी रेंज ली थी 1000 की, तो हमने डेटा जनरेट किया एंड डेटा को अपेंड किया ये जो भी प्रोफाइल जनरेट हुए उससे। एंड नाउ यू कैन सी इससे क्या होता है, देखो ईमेल फेक जनरेट होता है, कंट्री, स्टेट, देयर लेट्स से एनुअल इनकम फेक जनरेट। तो यू हैव दैट कमांड, आप यहाँ पे जो भी फिगर डालोगे उसमें रैंडमली पिकअप करके एनुअल इनकम जनरेट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। सो वेरी क्विक आपने एक डेटा जनरेट कर लिया, दैट इज योर सिंथेटिक डेटा, ठीक है। ये दिस इज जस्ट एग्जांपल कि क्या जनरेट करता है। आई थिंक दिस इज 16 और 32 इसकी लेंथ होगी। यू कैन इवन फाइंड द लेंथ बाय यूजिंग दिस फंक्शन, लेट्स से लेंथ, क्या जो भी आपको मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी गाइस, वी आर जस्ट सी 36 का एक लेंथ का एक UID जनरेट करके देता है, ठीक है, दिस फंक्शन। ओके, सो दैट वाज वन थिंग। अगर आप इसको डेटा को आप प्रिंट करोगे तो यू हैव 1000 प्रोफाइल्स आपके जनरेट हो गए, बट एज आई सेड दिस इज द फेक मेथड। जस्ट आपको ये देखो 1000 रिकॉर्ड जनरेट हुए एक्चुअली डेटा के।
So you can take and check. See, each and every data is very quickly generated. Age जनरेट हो गया, नाम जनरेट हो गया, वो फीमेल है वगैरह, वो सब जनरेट हो गया, बर्थ डेट जनरेट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग. बट ऐसी एक डमी आपका ईमेल जनरेट हो गया ना. सो यू कैन थिंक दिस काइंड ऑफ डेटा जस्ट फॉर टेस्ट केसेस. अगर किसी को टेस्टिंग के लिए कुछ चाहिए तो यू कैन जस्ट जनरेट this kind of fake data. All right, guys. Synthetic data for customers. What is here? Maybe this file is present or not. I have to see, because in D column I just deleted. Gorak, in the meantime, Yes. can we also write that synthetic data in the form of CSV? Sorry. Yes. Yes, Aditya. Can we write this data Uh-huh. in a CSV? Yes, we can. Yes, we can do that. Let me check. But yeah, definitely we can convert this into data Okay, we frame. can. Yeah, you can convert this into data frame. और जो भी data frame आएगा तो आपको क्या करना है, data frame to CSV करके फंक्शन है, CSV. जैसे Okay, आप okay, to got it. CSV और उस डेटा को पास करोगे, इट विल बी, ये आपको डाउनलोड करके आपको CSV फाइल, जिस फोल्डर में ये फाइल है ना, उसके बाजू में आपको ये CSV फाइल जनरेट करके दे देगा. So you can try this, but ये डेटा, let me check, डेटा होगा नहीं होगा, because this is not data frame, but let me try, अगर होता है तो. ठीक है, to CSV. गौरव, एक और क्वेश्चन है हाँ. कि जैसे अपन ने वो देखा है डीप फैक, जैसे same. ऑडियो हाँ हाँ. वीडियो Okay. या सो इज हाँ. इट in its backend this fact mechanism is working, we can say like that, मतलब predefined data has been like created as a fact हाँ हाँ. In backend in the sense, मतलब admin panel पे आप बोल रहे in हो the backend. Yes, for example, if you write something in ChatGPT or something in Google, na, it's want to create some deep fake audio, Okay. video or some data, okay? So Okay. it will give you, yes, it will definitely replace and give us some sample of data. And like if you're uploading something, it makes a, Correct. fake video or kind of replacing Regarding the audio images. na, I think. audio maybe we have to check, because text related data is generated, but audio we need to check. But yeah, there are some available like platforms where you can generate the audio data. जैसे यूट्यूबर उसको यूज करके है, that is very Pixabay या something, you can just go and see. Pixabay No, करके, my audio data you are asking. question is that is there in no, my question is that if we are working with the data only as a fact report, okay, Okay, to data only. create a हाँ. fact data, it is a synthetic data. It's all about we are predefining the data sets and it creates some fact data for us, okay. Correct. हाँ. So we have to already define it, okay, in the library. This type of data I have to fetch from this type of data set. It's a predefined. Yes. Correct. Am I right? Yeah. So is there a same mechanism? I can't say the same library. Is it a Uh-huh. same mechanism with same like in a backend EDA, like we can say that it is like predefined data set and they picked up because they have a maybe very large data set and they are just generating the things for us. This is just an example you are saying to us. It's a fact. Is it a same like Facker is library in a vast level used in the same scenario or not? Actually, I think you got my question. You are asking like you are asking about this Faker library or another mechanism which is available. That is what you are asking. Like No, same. Faker library only. Yes, Faker Okay. library only. But see, this is a Faker. It is not just a one library. It doesn't have only one mechanism. Am I right? Correct. Randomly they generate this It thing. has a multiple. Correct. Yeah, so it has a multiple data sets or multiple. We can say that probabilities data. Probability of data they stored at their end. And let's No, they functions never also. store. Yeah, they never store anything. They did not like So they. how it will predict? हाँ. सो क्या होता है, देखो आगे अभी क्या था, फॉर एग्जांपल हमने ईमेल जनरेट किया, ठीक है, तो ईमेल जनरेट करना है, मतलब आपको क्या करना है, एक ईमेल का, जैसे इफ यू कंसीडर ईमेल का फॉर्मेट कैसे होता है अपना जनरली, 1 सेकेंड. ईमेल का फॉर्मेट होता है लेट्स से xyz@abc.com और .gmail और .org, राइट. ओके, तो लेट्स अगर हम ऐसा कोड लिखेंगे कि ये जो नाम है एबीसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेकर ने हमको कुछ ऑर्गेनाइजेशन .org करके एक ईमेल जनरेट कर, आई एम जस्ट लाइक गिविंग सम रेफरेंस टू, बट यू कैन रिलेट टू ऑल दीज थिंग्स.
आप इस पूरे को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी ईमेल, ईमेल कहाँ पे अपना, ईमेल ईमेल ईमेल, हाँ ये वाला, ठीक है। तो फेक डॉट ईमेल जनरेट किया, ये ईमेल फंक्शन ने क्या किया, फेक के ईमेल फंक्शन ने, सी दिस इज द, ओके, व्हाट इट इज डूइंग, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज, ठीक है। ये इसके लॉजिक में अगर हम देखेंगे तो इसके लॉजिक में these are the examples, okay, these are some provided examples कि भाई इस वे से आप करो, बट इसका इंटायर अगर कोड देखेंगे ना, तो कोड में दिस लॉजिक इज बिल्ट इन दैट वे कि फॉर एग्जांपल अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पता होगा, अगर ईमेल वैलिडेट करना है, ओके, ईमेल वैलिडेट करना है, ठीक है, तो व्हाट डू, वी एड सम रेगुलर एक्सप्रेशन, सम कंडीशंस, एंड उसमें हम मैच करते हैं कि भाई एट द रेट के बाद स्लैश एस ये है क्या, उसके बाद नाम लिखा है क्या, और उसके बाद डॉट है क्या, 3 डिजिट 3 लेटर के बाद ये सब किया है क्या, दैट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज लॉजिकल, ओके। सिमिलरली यहाँ पे इसमें कोड में दे हैव जनरेटेड दिस टेक्स्ट, बट दैट टेक्स्ट शुड बी मोर मीनिंगफुल इन द सेंस, जैसे कि फॉर रेफरेंस पर्पस के लिए यहाँ पे देखो, ईमेल के लिए सी एफ जॉनसन एट एग्जाम्पल, तो ये example.org मे बी दे हैव टेकन सम एरे में, लेट से अगर वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते, किसी लेट से कंपनी का नाम तो नहीं दे सकते, बिकॉज इवन फेक जनरेट हुआ, बट कंपनी का नाम दे दिया, तो ये स्टैटिस्टिकली उन्होंने example.org या example.in.com ऐसे एक एरे बना के लिया है, ठीक है। दिस थिंग्स दे आर जस्ट रेफरिंग फ्रॉम द नेम, ठीक है, ये नाम का कॉम्बिनेशन करके, मतलब दिस इज ऑल लॉजिकल पार्ट दे हैव डन, रैंडमली उठा के, लेट से अगर जोशुआ नाम है तो इसके 3 लेटर उठा के ये यहाँ पे ले लेंगे, उसका लेट से जेंडर फीमेल, तो मे बी यहाँ से एक कैरेक्टर उठा के चिपका देंगे, ऐसा एक मैकेनिज्म बिल्ड करेंगे कि ये हो गया, उसके बाद एट द रेट चिपका देंगे, और जो एरे में जो भी है, ORG है, उसके बाद है .in.com, जो भी वहां से रैंडमली एक पिक करेंगे और एक स्ट्रिंग बना देंगे जो कि ईमेल के जैसे लगेगा, तो बन गया ये चीज। अब अभी ये जो कंट्री वाला पार्ट, कंट्री का एक उनके पास ये होगा, जैसे आपने बोला डेटा सेट भी, तो जैसे ये अवेलेबल डेटा सेट है, कंट्री के नाम तो मिल जाते हैं अपने को ना, उसके बाद स्टेप ये इसका तो अपने पास, यस, ये मतलब ये डेटा सेट से उठा है, यस यू आर राइट, एंड दिस काइंड ऑफ डेटा इज पब्लिकली अवेलेबल, बट ये दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग ना, दिस वी कैन इवन प्रोग्रामेटिकली बिल्ड दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। फोन नंबर का रेफरेंस प्रोग्रामेटिकली आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, बट जस्ट दिस इज, अभी यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऐसा है, चलो रैंडमली जनरेट हुआ, मे बी यू कैन इवन जनरेट द करेक्ट फोन नंबर, किसका भी, मतलब जैसे कि हम रैंडमली अगर नंबर डायल कर देते तो लग जाता है किसी का, अगर हमने डिजिट बराबर डाले तो, ठीक है, दे कैन नॉट हैव कंट्रोल, बट या यू कैन जनरेट दिस काइंड ऑफ नंबर्स रैंडमली, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग ये फेकर ने क्या किया, एक लाइब्रेरी बनाई, और लाइब्रेरी में प्रोग्राम पूरा लिख दिया, जो कि यूजफुल टूल बन जाए किसी लोगों को जिनको डेटा यूज करना है उनके कुछ काम के लिए, लेट से टेस्टिंग के लिए या वॉट एवर द थिंग्स, सो दिस फिर वो डेटा इनपुट कहाँ से होगा? फॉर एग्जाम्पल फैकर लाइब्रेरी इटसेल्फ डजंट हैव अ डेटा सेट, ओके, हमने ऊपर डिफाइन किया डेटा कि भाई मुझे जीमेल में इतना में से कुछ भी ले लो, इसमें से इतना में से रैंडमली मेल फीमेल में से कुछ भी ले लो, सो वी आर डिफाइनिंग द डेटा सेट। फैकर इटसेल्फ लाइब्रेरी डजंट डिफाइन एनी डेटा सेट, सो हाउ इट विल बी यूजफुल? अगर हमें चाहिए तो हमें पहले उसको डेटा डिफाइन करना पड़ेगा, then करेक्ट only we करेक्ट, will तो be दैट्स able व्हाई to आई use सेड it. ना कि दिस इज द पुअर डेटा जनरेशन, और एक्चुअल डेटा जनरेशन आई विल शो इट हियर, ये देखो दिस इज एक्चुअल, बिकॉज यहाँ पे वॉट एवर द प्रोबेबिलिटीज ना, वी आर पासिंग द प्रोबेबिलिटीज, सी, ओके, दिस इज द पुअर, जस्ट फॉर टेस्टिंग, जिनको एकदम लो लेवल बेसिक लेवल जस्ट स्टार्ट लेवल पे करना है, दे कैन गो विथ फेकर, बट लेट से जैसे मैंने बोला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, सी, कस्टमर इंश्योरेंस के लिए हमने डेटा जनरेट किया था, ओके, बट हाउ वी जनरेटेड, सो वी हैव प्रोबेबिलिटीज, सी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज पास की हमने, 48%, 5%, दिस काइंड ऑफ, लाइक जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिली थी वो हमने प्रोबेबिलिटी बेस पे पास करके हमने जनरेट किया था डेटा, ओके, एंड यू कैन सी हमने फेकर यूज नहीं किया है, बिकॉज लॉजिकली हमने जो भी हमारे पास जो आया, हाँ, इसके लिए देखो, सी, जस्ट फॉर, बिकॉज एट द एंड मशीन लर्निंग के फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये मशीन को चाहिए ही नहीं, बट जस्ट अगर पूरा डेटा बनाना है तो हमने लिया था, बट एट द एंड हमने ये कॉलम्स ड्रॉप कर दिए थे, बिकॉज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मशीन क्या सीखने वाला है, हाँ, जेंडर रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन वी नीडेड, सो वी हैव कीप्ट इट, बट जेंडर में हमको पता है भाई जेंडर में 3 ही जेंडर हो सकते हैं, तो हमने भी ऐसे ही, तो ऐसे ही फेकर ने भी थोड़ी बहुत ऐसे ही चीजें की है, लेकिन हाँ उन्होंने क्या किया फिर, थोड़ा जो सिटी का है तो सिटी का ग्लोबली अवेलेबल एरे है, स्टेट का है स्टेट अगेंस्ट सिटी का है, तो दे हैव टेकन दैट,
बट अल्टीमेटली दैट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पर्पज है, जैसे कि हमारे लिए वो यूजफुल नहीं था, हमने यूज नहीं किया उसको। आई एम जस्ट गिविंग फ्लेवर टू यू कि भाई ऑन अ टेस्टिंग लेवल बेसिस पे भी हम फेकर मतलब जनरली लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे इतना यूजफुल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। वन सेकेंड, दिस ओवी, sorry guys. Yeah, so this is totally depend what we are referring. But just in case कि भाई सिंथेटिक में ये भी एक आता है चीज, तो आई एम जस्ट से बट आई एम नॉट वी कैन से प्रमोटिंग फेकर। तो फेकर मतलब उस टाइम पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे कि आगे यू आर सेइंग ना, सेम जब मैंने शुरू किया था, सी स्ट्रैटेजिकली अगर जाते हैं ना, पहले तो जब हमने मॉडल का चीज देखा था, तो इवन कैसे जाना डेटा या अवेलेबल नहीं, तो उस टाइम पे सजेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज था। तो मैंने सजेस्ट किया था कि अगर हमको एक्सेस नहीं है ना, तो हम डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो उस पे काफी सारा नो आया था मेरे लिए कि नहीं नहीं ऐसे कैसे डेटा जनरेट कर सकते हैं, ऐसे कैसे हाँ भाई, लेकिन अगर डेटा नहीं जनरेट कर सकते तो ओरिजिनल डेटा दो। अगर ओरिजिनल डेटा नहीं दे सकते तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हम जहां पे स्टक हुए उसको आगे बढ़ बढ़ सकते हैं ना। तो ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा यस नो हुआ, एग्री हुआ। फिर मैंने जस्ट देखा कि कैसे मैं कर सकता हूँ डेटा जनरेट वगैरह। उस टाइम पे मैंने ये फेकर देखा था, तो मैंने जब ये फेकर का एक एग्जांपल दिया, आई वाज जस्ट शोइंग एग्जांपल हाँ, कि हम कर सकते हैं, लोग करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये अवेलेबल था, गूगल किया, फेकर दिखा। जब ये फेकर नाम सुन के ना दो तीन बंदे वहीं पे, नहीं नहीं ये नाम में ही फेकर है, तो आप हमको फेकर डेटा दे रहे हो क्या? अरे भाई, आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि यूज दिस, आई एम टेलिंग यू द वे वी कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स विथ आवर ओन ना। क्योंकि एक तो कंप्लीट ब्लॉक है, अपने को डेटा नहीं है, तो डेटा नहीं है तो आगे कैसे बढ़े? अगर नहीं है तो जनरेट करेंगे। उस टाइम पे ये सिंथेटिक वाला पता नहीं था, सिंथेटिक उसको बोलते हैं। बाद में फिर जो डिस्कशन हुआ तब पता चला कि दिस दिस काइंड ऑफ डेटा जनरेशन इज कॉल्ड सिंथेटिक डेटा जनरेशन। तो देन भी हमने मूव किया। फिर ये इंश्योरेंस वगैरह, जैसे मैंने बोला, लोन वगैरह वो सब चीजें, तो फिर वो उस पर काम किए। फिर हमने डेटा जनरेट किए थे बहुत सारे कस्टमर्स के, पॉलिसीज रिलेटेड। उसके बाद हमने जनरेट किए इंश्योरेंस, लोन रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड। तो काफी सारे टेबल्स थे, टेबल्स के नाम मिल गए थे, तो हमने डेटा जनरेट करना शुरू कर। जैसे मैंने बोला, इवन सी फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे इट्स ओके, बट इवन वी डोंट नीड फर्स्ट नेम लास्ट नेम एट ऑल। इवन ईमेल आईडीज हमको नहीं चाहिए, मशीन लर्निंग को भी नहीं चाहिए मशीन को। इवन मोबाइल नंबर भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पे मशीन को लर्निंग करने जैसा कुछ है ही नहीं। मशीन को लर्न कब होगा? जब these kind of things are there in the data. ठीक है, based on these distributions and these kind of things, So machine we will find the patterns. can say that insurance का, हाँ तो इसका uh, मतलब ये हुआ ना कि फॉर एग्जांपल समटाइम कॉन्फिडेंशियल, correct we know correct the domain, हाँ, but the data actually confidential we don't have. We correct have to correct perform some functionality on based on that data. At that time we can use a Faker and generate the data and we process our further work. yes yes Kind of intention is of Faker, ऐसा समझ में आया। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब देर आर वेज। अगर लेट से आपके यूज केस में अगर लेट से फेकर चल जाता है, ठीक है, चल जाता है इन द सेंस, चलो इस वाले टेस्टिंग डेटा पे, मतलब ऐसे वाले टेस्टिंग डेटा से भी आपका अगर काम चल रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली गो विद दिस। अदरवाइज लेट से नहीं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो भी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन और वो आपके पास है, उसका बिहेवियर आपको पता है, देन यू कैन गो विद दिस काइंड ऑफ ये वाला वे आप जा सकते हो। ठीक है, इस वाले वे से फिर देर यू हैव टू अप्लाई सम रूल्स। देखो, यू कैन सी देर आर सम रूल्स, प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, सम वैल्यूज। तो बेस्ड ऑन दिस, ये सब पाइथन का प्रोग्रामिंग वाला कोड है। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस, दिस रैंडम डॉट चॉइस जेंडर्स, तो ये सब प्रोबेबिलिटी पास की है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये सिक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी पास की है। जैसे कि अगर फर्स्ट में जेंडर आपका मेल फीमेल 50%, 48% आपका मेल है, और जो अदर्स है उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगा जनरली डेटा में, ये ऐसा पास किया। और उसके बेसिस पे फिर जेंडर मिल गई। ठीक है, देन ये ईमेल वाला देखिए आप। ईमेल में क्या किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ से भी, यहाँ से जो भी नेम अवेलेबल है उसमें से उठाओ और उसको फिर example.com दे दो। बट एक्चुअली ईमेल भी हमको नहीं चाहिए था, बट जस्ट एक रियल काइंड ऑफ डेटा लगे, तो उसलिए जनरेट किया था। एंड इवन फोन नंबर भी। तो मेन क्या था हमारे पास? मेन था ये वाली चीजें, जैसे कि उनका जेंडर, लोकेशन हो गया, सैलरी, उनका कवरेज कितना है, नहीं का जैसे पॉलिसी जो भी वो परचेस कर रहे हैं, तो जनरली क्या रेंज से लेके क्या रेंज तक उनका परचेसिंग का एक रेंज है, तो उस रेंज को फिर प्रोबेबिलिटी में कैसे जाएंगे,
तो पॉलिसीज की जो टाइप्स है उसमें सिक्वेंशियली हमने प्रोबेबिलिटीज पास की, जो कि इनका टोटल जनरली होना चाहिए 100, बिकॉज वी नो प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, 1 इज फॉर 100, 0 इज फॉर 0। ठीक है, तो उस वे से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए प्रोबेबिलिटीज और इसमें पास कर दिए। पास करने के बाद पॉलिसी टाइप उसी प्रोबेबिलिटीज की हिसाब से जनरेट हुई। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के वे से देखें तो 35% आपका जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज था, लेट्स से पॉलिसी यहाँ पे है क्या, पॉलिसीज के जो नाम्स थे उसके बेसिस पे हमने इस काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड रूल बेस्ड डेटा जनरेट किया था, विच इज नॉट काइंड ऑफ लाइक फेकर ना लगे। और जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन है रियल डेटा का, जो भी लेट से हमने अगर रेफरेंस के लिए 1 लाख डेटा लिया था, तो 1 लाख डेटा पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट हुआ उस बेस से, देखो हेल्थ, लाइफ, ऑटो, होम, ठीक है, उस वे से उस प्रोबेबिलिटी बेस पे हमको मिलना हो, मतलब चाहिए, और उस मैच करे ताकि उसी डेटा से वो मैच हो पाए। इस वे से हमने थोड़ा सा मैच करने का कोशिश किया, और उसके बाद ईडीए करने के बाद फिर हमने कंपेयर किया कि भाई जो भी डेटा जनरेट हुआ है थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ है क्या, ताकि हम आगे बढ़ सके। सो वेरी जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था प्रोबेबिलिटीज, क्या प्रोबेबिलिटीज है इनका, इनका इससे प्रोपोर्शन क्या है, फिर कैसे कोरिलेशन क्या है, वो सब चीजें हमने लेके फिर कोडिंग इस वे से एक रूल्स बेस्ड डेटा जनरेशन बना के हमने जनरेट किया था। तो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल आई जस्ट वांट टू लाइक प्रेफर। सो जैसे कि हमने देखा, यू कैन गो विथ फेकर बेस्ड ऑन व्हाट योर द रिक्वायरमेंट। हाँ, अगर आपको जल्दी से रिक्वायरमेंट चाहिए, टेस्टिंग बेस्ड चाहिए, तो यू कैन रेफर फेकर। अदरवाइज लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो आपका एक जो भी रिक्वायरमेंट है मैच होने का, या फिर उसका फ्लेवर जैसे रियल डेटा का, तो देन यू विल गो विद दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। दिस तो इसमें थोड़ा टाइम लेता है फिर ना, इसमें थोड़ा टाइम लेगा, आपको इनपुट भी लेना होगा आपके टीम्स, दूसरे टीम से जिनको पता है, वो इनपुट आने के बाद आप डिस्कस करोगे, डिस्कस करने के बाद फिर ये सब चीजें अप्लाई करके फिर डेटा जनरेट करोगे, और वो डेटा फिर आपका सिंथेटिक डेटा रहेगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ये पॉलिसी आईडी देखो, XYZ जो भी पॉलिसी का जो इनिशियल था वो स्टैटिस्टिकली दे दिया, पॉलिसी आईडी जो जनरेट होगा उसमें कितना नाम चाहिए वो नाम लेके फिर दैट काइंड ऑफ जनरेशन मीन्स। बट यस, सो टू आंसर योर क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द सिनेरियो यू कैन थिंक कि भाई फेकर जाना है या इस रूल बेस्ड वे से जाना है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द यूज केस, और वी कैन से कंडीशन, और वी कैन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, सी हाँ हाँ, देखो यहाँ पे भी इंश्योरेंस डेटा जनरेटेड विदाउट फेकर, ठीक है, विदाउट फेकर, एंड देन विद फेकर भी है क्या इसमें? ठीक है, नहीं, वो एक्चुअली मे बी दैट टाइम फोर्सफुली ऐसे विदाउट फेकर देना पड़ा था। ठीक है, बट सम काइंड ऑफ एग्जांपल गाइस। और ठीक है, ये तो सिंथेटिक डेटा के बारे में हो गया, ये सब प्रोग्रामिंग है। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, यू इवन आई विल शेयर दिस, जस्ट एग्जीक्यूट करो इससे। अगर आपको ज्यादा डीप में, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस आपको ये रहेगा। अगर अगर सपोज ऐसा सीन आता है, कंडीशन आता है, देन यू कैन रेफर दिस नोटबुक, आप रेफर कर सकते हो अगर थोड़ा सा डेटा रियल काइंड ऑफ डेटा जनरेट करना है। ठीक है, आपके बेसिस पे आप देखो अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, पेंडिंग, तो फिर ये जो स्टेटस है पॉलिसी का, तो ये 3 स्टेटस है, उसमें से तीनों का प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? तो अप्रूव होने के 70% चांसेस थे, रिजेक्टेड के 15% थे, मतलब डेटा में एग्जिस्टिंग, पेंडिंग जो था वो 15%। तो ठीक है, इसके बेसिस पे हमने जो भी डेटा जनरेट किया वो बराबर, जो भी आप फिगर पास करोगे यहाँ पे, मतलब शुरू में ही, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स यू कैन 1000 है या 1000, 10,000 आप यहाँ पे पास कर दो, और आगे बढ़ो। लेट मी चेक इफ समवन हैज मैसेज। ठीक है, ओके, मैसेज नहीं है। यस आदित्य रेज हैंड, यस आदित्य। सो गौरव, जो हम प्रोबेबिलिटी हम जो दे रहे हैं तो उसका यूज वही रहेगा ना कि जो भी प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से फिर जो डेटा जनरेट होगा वो उसी हिसाब से होगा, राइट? जैसे करेक्ट, अगर हम जेंडर का डेटा चेक कर रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि 0.48, 0.5, 0.02, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ, तो जो हमारे 3 जेंडर्स है तो मेल वुड बी 0.48%, करेक्ट, 100% will be male and 50% will be अदर्स, female, right? ठीक है, हाँ 0.2 विल बी अदर्स, हाँ यस यस यस, करेक्ट, Two will be others, right? हाँ हाँ, So yes. we are just instructing instructing to the faker that No, like no, no, what not will be faker, the not faker, not probability, faker. right? There is no faker, we are Okay, writing in a this case there is no program, faker. we are writing a logic in such a way that we will be generating a data with this distribution। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जेंडर, तो वी नो कि हमारे पास डेटाबेस में 3 ही जेंडर है, एक है मेल,
एक है फीमेल, लेट्स से ओके सिक्वेंशियल या एंड अदर्स। तो जैसे भी हमने फाइंड आउट किया कि भाई हर 100 में देर आर 0.02 चांसेस कि भाई अदर मिल जाए। जनरली तो हमको मेल और फीमेल ही मिलते हैं, करेक्ट ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स ना, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। इसका अगर टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 100। बट हाँ, वन ओके वन मिलेगा। यस, okay. So 100%। in this case, like as we have seen two methods, one with the fecal library and the हाँ, another करेक्ट one this one. करेक्ट। So which one is the optimized one then? सो यस, एज आई सेड कि देखो फेकर का मैंने जस्ट एक आपके सामने रख दिया, बट ये फेकर कब यूज करना है, चलो भाई आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए, और लेट से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है आपको उस टाइम पे। हाँ, बट आई विल से Hmm. ये एम आई ऑडिबल? यस यस। Yeah, not really. थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हुआ था एंड स्क्रीन शेयरिंग भी बंद हो गया। लेट मी रीशेयर इट। ठीक है। तो यस, जैसे मैंने, हाँ, ये जो है ना जनरेट इंश्योरेंस और सिंथेटिक डेटा विदाउट फेकर, ये विदाउट फेकर Hmm. वाला आपको 90-95% आपको इससे जाना है। बिकॉज मतलब Okay. अगर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ सिनेरियो आ गया तो, अदरवाइज अभी कैसे ना डेटा मिल जाता है, बट मे बी हो भी सकता है कि भाई प्राइवेसी है डेटा की, तो उस टाइम पे आपको ये वाली Hmm. तो ये जो है ना, और ये कैसा है, ये ना नेट पे उठा है ना, ये हमने खुद से जनरेट किया है बिकॉज आवर फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। और ये सिर्फ एक है इंश्योरेंस के लिए, वहां पे फिर बहुत सारा था, लोन रिलेटेड डेटा था, फिर पेमेंट्स गेटवे रिलेटेड डेटा था, बहुत सारा था। बट आई एम जस्ट गिविंग यू फ्लेवर कि भाई अगर आपके साथ ऐसा अगर कुछ हुआ तो यू कैन रेफर दिस वे, आप ये रेफर कर सकते हो ये वे से, और आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप जनरेट कर सकते हो डेटा। बट देर आर अगेन, इसको और अगर कॉम्प्लिकेशंस में जाना है ना गाइस, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कैसे पता है, मैं तो ये तो आपको एकदम सिंपल वे से बता रहा हूँ, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशंस जाने की भी जरूरत नहीं। मतलब कैसे, चलो ये तो हो गया, आपने पॉलिसी टाइप ये डिस्ट्रीब्यूशन था जनरेट कर दिया, बट लेट से पॉलिसी टाइप ये है, उसके बाद उसका जो रिस्पेक्टिव कॉलम है लेट से फीमेल के अगेंस्ट, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आप बहुत डीपर और डीपर चले गए, ठीक है। बट दिस इज सिंपलर वे से कि चलो भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन टोटल, जैसे हमने तीन देखे थे, एक यूनिवेरिएट एनालिसिस देखा था, एक बायवेरिएट एनालिसिस देखा था, और एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस देखा था। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हमने क्या देखा, एक वेरिएबल का हर एक डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। ये हमने मल्टीवेरिएट में देखा। बायवेरिएट में क्या देखा, लेट से जेंडर का एज से क्या रिलेशन है, ये हमने बायवेरिएट में देखा। उसके बाद हमने देखा यूनिवेरिएट, तो यूनिवेरिएट ये सब यूनिवेरिएट है। तो हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था कि भाई कैसे जाए, यूनिवेरिएट जाए, बायवेरिएट और मल्टीवेरिएट जाए। तो तभी के लिए काम चलाने के लिए हमने यहाँ से ये सोचा कि चलो भाई वो ज्यादा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, तो यूनिवेरिएट के हिसाब से जाए। बट टोटली डिपेंड ऑन यूर लॉजिक, यूर प्रॉब्लम स्टेटमेंट गाइस, कि आपको कैसे जाना है। अगर मल्टीवेरिएट जाना होगा तो आपको और कंडीशंस यहाँ पे ऐड करनी होगी कि भाई वो एज इतना था, और उस एज में ये मेल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भाई मतलब 50 से लेके 70 का एज डिस्ट्रीब्यूशन मेल वाला ये परसेंटेज में है। ये आपको फिर वो वाली कंडीशन लगा के और डीप में जाना होगा। बट आई होप कि ऐसा सीन मे बी रेयरली आपके साथ आएगा। बट दीज आर सम फ्लेवर्स आई जस्ट वांटेड टू गिव। अगेन वन मोर थिंग गाइस, वी हैव सम टाइम। मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको। आपने जैसे मैंने बोला आपका खुद का डेटा या ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, तो आपने कभी ट्राई किया कि आपका जो लेट से माई एसक्यूएल है या फिर एसक्यूएल है, जो भी पीएचपी आपका जो भी डेटा स्टोर है आपके सिस्टम में, कभी आपने ट्राई किया कनेक्ट करने का स्क्रिप्ट के थ्रू? किसी ने किया होगा जस्ट फॉर ईडीए पर्पज, और आई एम जस्ट सेइंग, मतलब इसलिए कि हो सके आप ये भी कर सकते हो ना, आपका अगर अवेलेबल डेटा है, फॉर एग्जांपल आपको मुझे मेरी स्क्रीन दिख रही ना, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, हाँ अगर मैं मेरा लोकल का डेटा सेट है मेरे पास, ठीक है, लेट मी स्टार्ट दिस। मैं स्टार्ट किया और यहाँ पे मेरे पास PHP माई, You mean to say MySQL connection with करेक्ट Python? करेक्ट, ये आपने कभी ट्राई किया है क्या? Yeah, I did it. किया है ना आप? Yes, I did it for the MySQL connect. Okay. करेक्ट करेक्ट, मैं जनरली हम क्या करते हैं अगर पाइथन से, मतलब जस्ट अगर मैं, हाँ यस यस हीरक यस, Yes, पाइथन से किया था जिसके उसके मॉडल्स रहते हैं, ऊपर एसक्यूएल करके कुछ आता है ना। हाँ there are some issues with the internet actually, I'm getting disconnected again and again, but it's okay, ये इवनिंग के टाइम पे और थोड़ा वेदर की वजह से हो जाता है। बट आई होप आई एम ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल।
तो Yes, yes. ओके, तो वी हैव Yeah. वन लाइब्रेरी गाइस एंड विच इज वेरी हेल्पफुल लाइब्रेरी फॉर अस, और उसका SQL अल, हाँ ये दिस वन अल्केमी। ठीक है, अगर आपने ये इंजन अगर इसके बारे में देखा होगा, लेट मी ट्राई, कुछ मेरे को इंस्टॉलेशन लगता है क्या, जस्ट ट्राई ना। यस, क्रिएट एंजल एसक्यूएल alchemy, हाँ इसी से किया था मैंने। ओके, या तो गाइज आपके लिए भी ये अच्छा एक देन प्रैक्टिस, क्वेरी जिससे अपन हाँ ये आपके लिए भी एक अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है। आप मगर मतलब आपको अगर डेटा चाहिए रियल टाइम और डेटा के साथ प्ले करना है, या ये टाइप ये ओके दिस इज वर्किंग ना, तो इस टाइप के आप कनेक्शंस चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, चलो अगर मुझे ये इंजन बनाना है इसका, जस्ट फॉर कनेक्टिंग टू आवर डीबी, हाँ क्रिएट इंजन, हाँ ठीक है, क्रिएट इंजन करके फंक्शन हम दे सकते हैं, और उसमें थोड़ा अभी दिस इज कॉलिंग टू एसक्यूएल लाइट बट माइन इज माई एसक्यूएल है ना, तो चलो माई एसक्यूएल डाल के देखता हूँ। हाँ ये वाला, यस दिस वन, ठीक है। तो आई होप माई मेरी स्क्रीन आपको, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट एंड ट्राइंग टू शो कि आप भी क्या कर सकते हो ईडीए के लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग, आप ईडीए के लिए आपको रियल टाइम का डेटा भी आप ले सकते हो ऐसा। दिस इज माई एसक्यूएल, तो फॉर माई पर्पस इट विल बी, वी कैन से, चलो इससे यूजर नेम है, तो मेरा यूजर नेम ऐसा है रूट करके, रूट, मेरा यूजर नेम रूट है। पासवर्ड नहीं है, मेरे केस में पासवर्ड नहीं है, लोकल होस्टिंग, लेट्स सी कनेक्ट होता है। व्हाट हैपेंड, नो मॉड्यूल py, अच्छा py माई एसक्यूएल इज नॉट ना, मे बी माई एसक्यूएल कनेक्टर करके, कनेक्टर, यस माई एसक्यूएल कनेक्टर, हाँ बिकॉज PHP में एडमिन ना, माई एसक्यूएल कनेक्टर आई एम यूजिंग। सो इंजन बन गया। अभी ये इंजन अगर बन गया तो इस इंजन का यूज करके आई कैन कनेक्ट विथ माई डेटा, हाँ आई कैन कनेक्ट विथ माई डेटा गाइस। उसके लिए लेट से अगर मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, क्वेरी इज इक्वल टू, आई मेरे थिंक पास, सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, सेशन क्रिएट नहीं करते क्या, बेस बेस डिक्लेयर करके फिर नीचे, या यू आर डायरेक्टली फायरिंग अ क्वेरी। यस वी कैन, हाँ वी कैन नाउ सी इंजन एग्जीक्यूट हो गया अपना, बराबर, इंजन अपना बन गया, कनेक्शन बन गया। सो यू कैन डायरेक्ट स्टार्ट एंड यू कैन डायरेक्ट लाइक क्वेरी, ये मैं सिर्फ वेरिएबल ले रहा हूँ क्वेरी का, ओके, बट ओके लेट मी डू इट, आई विल लेट मी फिनिश एंड देन यू विल गेट द आइडिया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी क्वेरी मैं दूंगा, फिर क्वेरी का मतलब ये सिर्फ एक वेरिएबल में दे रहा हूँ, फिर वेरिएबल को मैं एक फंक्शन में रीड करूंगा, जैसे कि पांडास हमने ये किया है ना, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि आप कैसे कर सकते हो पांडास लाइब्रेरी, मतलब डेटा फ्रेम अगर आपको बनाना है, बिकॉज एक बार डेटा फ्रेम बन गया, सी दिस वन, एक बार आपका डेटा फ्रेम बन गया, तो डेटा फ्रेम के साथ हम ईडीए कैसे करते हो, पूरा आपका आगे का पोर्शन जब ईडीए आप कर सकते सी। अच्छा ये भी आ गया देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम योर टेबल नेम, तो टेबल नेम, हाँ डेटाबेस के बारे में देखना होगा, हाँ बट या ये वाला डीबी नेम ना, यू आर मे बी यू आर टेलिंग अबाउट दिस ना, डीबी नेम, तो डीबी नेम मेरे को डेटाबेस का नाम पास करना होगा, और दैट इज नथिंग बट लेट्स से डीप लर्न अंडरस्कोर डीबी, डीप लर्न अंडरस्कोर डीबी करके, ठीक है। तो नाउ ये इंजन मेरे डेटा को कनेक्ट करेगा डायरेक्टली, डेटा को, मेरे डेटाबेस को, एक्चुअली डेटाबेस को, और वहां से मैं लेट्स से अगर टेबल मेरा लेसन्स है तो मैं लेसन्स ले सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, लेसन्स, सी डीएफ, अगर मैं डीएफ को प्रिंट करूंगा यहाँ से, तो फिर आगे यू कैन स्टार्ट वर्किंग विथ वॉट एवर वी हैव लर्न, ठीक है, हमने जो भी अभी तक सीखा है, आप सी ये आ गया मेरा डेटा, पूरा डेटा फ्रेम में आ गया, और यहाँ पे फिर यू कैन प्ले विद दिस विद द हेल्प ऑफ आवर ऑल लाइब्रेरीज विच वी हैव एक्सप्लोर अबाउट पांडास डेटा फ्रेम ऑल, एंड देयर इज वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको डेटा का, जैसे मे बी यू आर टेलिंग मी लाइक आस्किंग मी फॉर दिस वन, अगर आपको जस्ट चेक करना है, हाँ बट सी इंजन अगर आपने ओपन किया है तो इंजन को आप डिस्पोज भी करो, हाँ नहीं तो इंजन ओपन होता है डेटा का, दैट इज नॉट गुड, तो आई विल से शो दैट, बट लेट्स से मे बी यू आर आस्किंग अबाउट दिस, आप डेटा का जो पूछ रहे हो, मतलब मे बी आर यू आस्किंग अबाउट के क्या डेटाबेस वगैरह कौन सा है वो शो करना है, आर यू आस्किंग दैट, फॉर एग्जांपल ये, हाँ ठीक है, लेट्स से मैं अगर हमारा जो एसक्यूएल अल्केमी है वहां से मैं टेस्ट टेस्ट लेता हूँ, तो व्हाट, यस हिरल, आर यू आस्किंग अबाउट दैट कनेक्शन वाला पार्ट, कि कनेक्शन चेक करना है वो वाला पार्ट ना, ऐसा,
हाँ हाँ ये हाँ वाला हाँ ये वाला ना कनेक्शन। नहीं हाँ सेशन में लेके फिर अपन क्वेरी फाइंड करते हैं ना, आपने जैसे भी करेक्ट। टेक्स्ट से कर लिया, मैंने जैसे डॉट फाइंड करके, दैट इज ओके, डिफरेंट, डॉट वी कैन डू फाइंड, इट। ओके ओके, इट्स ओके, मैंने, आई गॉट इट। हाँ मैंने पांडास का फंक्शन डायरेक्ट रीड एसक्यूएल वाला यूज किया। यू कैन डायरेक्टली पास क्वेरी एंड द कनेक्शन, एंड इफ यू वांट टू चेक द कनेक्शन यू कैन जस्ट यूज इंजन डॉट कनेक्ट कनेक्शन, और इसके बाद आप लिख सकते हो कि भाई कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, जो हम जनरली करते हैं, और फिर वो रन वगैरह करके। बट यहाँ पे जैसे इंजन बन गया तो आई थॉट के लेट्स हेलो, स्किप दिस पार्ट। या यस अमूल। गॉट इट। कैन आई कंटिन्यू? कंटिन्यू। ओके ओके। सो जैसे मैंने बोला कि एक बार ये मिल गया आपको, डेटा फ्रेम बन गया, तो ईडीए का अपने को सब चीज पता है कि हम ईडीए कैसे करते हैं, फिर मिसिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हमने सब एक्सप्लोर किया है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, बट एज ए सेड एक चीज आपको भूलना नहीं है, और वो है गाइस, इंजन को डिस्पोज करना कभी भूलना नहीं आप। दिस इज फॉर सिक्योरिटी रीजन, इंजन को आप डिस्पोज करो, डिस्पोज, हाँ ये वाला डिस्पोज, ठीक है, जब भी आप कनेक्ट करोगे आपके डीबी से। एंड एज ए पर सेड, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? मतलब ये MySQL आपने रीड एसक्यूएल किया, हाँ, और हम लोग तो पाई MySQL वो करते हैं, तो कौन सा अच्छा है MySQL को कनेक्ट करने के लिए? मतलब मैं नहीं समझा, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? दो तीन है ऐसे, अच्छा, आप दूसरे वो हम जो करते पाइथन पाई का, MySQL, हाँ। ओके ओके ओके। सो नो वरीज, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग वन वे, बट आप वो भी यूज कर सकते हो। नो मतलब ऐसा बड़ा डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं, ये मेरे पास ये अवेलेबल था माई एसक्यूएल वाला, तो देन आई वेंट विद दिस, ठीक है, एसक्यूएल अल्केमी एंड देन माई एसक्यूएल। नहीं, हम लोग पांडास के थ्रू करते हैं, तो कुछ बेनिफिट है क्या इसका? PD डॉट रीड एसक्यूएल करने से? बेनिफिट क्या? नो, व्हाई व्हाई वी यूज दिस, बिकॉज हाँ। अल्टीमेटली हमने डेटा फ्रेम बना लिया, ठीक है, और देखो ओके। डेटा फ्रेम अगर आपका बन गया, ओके। तो यहाँ से आगे यू नो द वे ना, हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से आगे, कि भाई आप फिर इसके बाद चाहे वो करो ना, बिकॉज हमने ईडीए और फिर फर्स्ट तो अपना, पांडास से रिटर्न करते हैं तो डायरेक्टली वो डेटा फ्रेम में दे, ऐसा आप बोल रहे हो क्या? PD डॉट रीड एसक्यूएल किया तो डायरेक्ट वो डेटा फ्रेम में डेटा लोड कर देता है क्या? यस यस यस, पांडास का ये फंक्शन है रीड एसक्यूएल, इट इज डायरेक्टली लोडिंग द डेटा इन डेटा फ्रेम, और एक बार डेटा फ्रेम में आ गया तो हमने जो भी अभी तक एक्सप्लोर किया है ना, कि चलो भाई डेटा फ्रेम को जो भी आपको करना है वो सब चीज आप कर सकते हो। तो दैट इज वन थिंग। और फिर चलो अगर इसको सेव करना है, ठीक है, वन मोर, ये मैंने डिस्पोज को एग्जीक्यूट नहीं किया ना, ठीक है गुड। अगर आपको इसको सेव करना है तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आई थिंक आदित्य ने पूछा था एक क्वेश्चन कि उस डेटा को एसक्यूएल में, सॉरी नॉट एसक्यूएल बट डीएफ में लेके सीएसवी में ले सकते हो क्या? तो यू कैन सी डीएफ डॉट सीएसवी करके फंक्शन है, टू सीएसवी, सॉरी टू सीएसवी। तो अगर ये आप कर सकते हो, टू सीएसवी में लेके यू कैन पास, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा टेस्ट, सॉरी टेस्ट df डॉट सीएसवी, तो ये सीएसवी में डंप हो जाएगा, और ये सीएसवी फाइल यू विल बी एबल टू पिक फ्रॉम हियर। ये किस कहाँ पे था लेकिन, ठीक है, इसके बगल में ही सीएसवी फाइल आ गया है। हम्म मैंने इसको सेव नहीं किया ना, सीएसवी फाइल कहाँ पे है इसका, ठीक है, लेकिन जनरेट हुआ है वो। जो भी पाथ आप देंगे उस पाथ पे जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है, मैं हम जस्ट ये ट्रायल के लिए सेव। एक क्वेश्चन है गौरव, एक्चुअली जैसे अपन डेटा फ्रेम में कैसे सेव करते थे, क्लोन करते थे, इन 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 समथिंग प्रॉपर्टी अपन इन वाला ट्रू देते हैं, देन इट विल चेक इन डेटाबेस ओनली, अपडेट ऑन डेटाबेस ओनली। तो अगर हमने इधर से डेटा फ्रेम बनाया और हम जो ऑपरेट करेंगे, हाँ तो वो डीएफ वाले वेरिएबल में चेंज करेगा और इट विल चेंज इन अ डेटाबेस ओनली। हाँ, एक सेकेंड ना, जैसे हम डेटा को, हाँ यस यस, हाँ मुझे समझ गया आपका क्वेश्चन। सिर्फ अभी क्या हो गया ये, योर, अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, मे बी आई एम नॉट ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल, बिकॉज आई एम गेटिंग यस, वन पॉप यस अप यस मैसेज, ठीक है। यस तो जैसे आपने बोला कि ये डेटाबेस में सेव करेगा या फिर डेटा फ्रेम में, ठीक है, तो देर आर टू वेज, बट ये अभी क्या हो गया, ये कैंसिल भी हो नहीं रहा, सेव भी हो नहीं रहा, लेट मी जस्ट क्लोज इट, ओके। आई डोंट नो व्हाई, लेट मी चेक, ये सेव क्यों नहीं हुआ, मैं जस्ट देख रहा हूँ, कंट्रोल एस, टेस्ट और सेव, ठीक है, कुछ तो मे बी देर आर सम इश्यूज, बट जनरली कंट्रोल एस से तो हो जाना चाहिए। अच्छा, दिस इज फॉर बैच, ओके, बट इट डजेंट मैटर, बैच वन बैच टू, ऐसे path is different.
हाँ बट इट्स ओके, ऐसा मतलब इस वो तो एक कुछ वैलिड रीजन नहीं है सेव न होने का, बट आई डोंट नो व्हाई सेव का कुछ प्रॉब्लम हो गया। बट जो मतलब आई जस्ट वांटेड टू शो कि जो हमने अभी बनाया ना, जो सीएसवी फाइल बनाया, वो सीएसवी फाइल कहाँ पे जनरेट होता है वो दिखाना था मुझे। बट इट्स ओके, यू कैन मैनेज दैट, मतलब आपको वो पता चले, आप देख लोगे उसको, इट इज नॉट अ बिग Yeah, डील। I got that. हाँ I got that, Gaurav. ओके ओके। नाउ योर क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन था कि चलो, हाँ हाँ, आपको अगर डायरेक्टली डेटाबेस में सेव करना है तो देर आर वेज, आप टू एसक्यूएल करके करोगे डायरेक्ट डेटाबेस में, अगर सेव करना मतलब ये वाला, अगर लेट्स मैं अगर ऐसा करता हूँ df.to_sql, अगर आप मैं करता हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है वो जो पास करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं, हाँ, नेम अगर देता हूँ, तो लेट्स से अगर आपको टेबल एक सेपरेट लेसन कॉपी, हाँ ये देखो, ये वाला अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो डायरेक्ट एक टेबल बन जाएगा, टू एसक्यूएल लेसन कॉपी। लेट मी चेक टेबल बना है क्या। ठीक है, लेसन है डीबी में, फेल जॉब, लेसन कॉपी, सी, ये लेसन कॉपी इज द कॉपी ऑफ अवर। Yes. हाँ, तो आप वो भी कर सकते हो डायरेक्टली, और यू कैन इवन मैनिपुलेट, और मैनिपुलेट इन द सेंस यू कैन अपडेट द वैल्यूज ऑफ योर डेटा, ये सब आप कर सकते हो, जो मतलब जो आपने पहले भी ट्राई किया है वो सब चीजें। तो जस्ट एक इसलिए ये बताना था कि आप ये कनेक्शन करके फिर आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है, मतलब मैं जैसे बोल रहा था ना कि ईडीए के लिए, बिकॉज डेटा एनालिसिस वी आर लर्निंग ना, तो जैसे बोला था कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा में भी देर आर पोटेंशियल स्कोप है, आप देख सकते हो कि भाई कहाँ पे गलत हो रहा है, और उस डेटा का यूज करके क्या पोटेंशियल है आप बता सकते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रेस कर सकते हो कुछ कंसर्न। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का एक टीम होता है गाइस, वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग डेटा को फिर एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ वैलिड इनपुट देते हैं वो लोग, कि हम अगर ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अपनी बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, वो यू कैन डू दैट एज वेल। तो जस्ट बिकॉज जो भी हमने ईडीए पढ़ा है तो उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, यू कैन थिंक ऑन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, मे बी यू कैन रेज दो सम कंसर्न्स एंड ऑल, एंड लेट मी डिस्पोज द इंजन। तो आई होप लाइक, उसने डेटा टाइप ऑटोमेटिकली लिया क्या डीएफ टू एसक्यूएल को? सॉरी, उसने इसमें डेटा टाइप क्या लिया आपने? हमने तो टेबल नहीं था मतलब। नहीं, automatically Amol he tag like as a property dot टू किया, then because मैंने क्वेश्चन पूछा ना कि अगर हमें एसक्यूएल के कुछ भी फंक्शंस अगर उस पे अप्लाई करने हैं डेटा फ्रेम पे, तो वी हैव टू यूज एसक्यूएल फंक्शंस। नहीं नहीं, डेटाबेस के अंदर हम्म। नहीं, वो टेबल देखा ना, लेसन कॉपी, uh, लेसन हाँ, वो अंडरस्कोर शायद कॉपी, उसने प्री रीड किया। यस। ये वाला, लेसन अंडरस्कोर कॉपी देखा, हाँ जैम के अंदर, हाँ तो ये पीएचपी बन, मॉड्यूल के अंदर। हाँ ये बन गया ना फिर अपना डेटा का फाइल, मतलब एक नहीं, टेबल। आपका दिख नहीं रहा, नहीं, टेबल नहीं दिख रहा आपका। नहीं। यहाँ पे एक, हाँ, इसका स्ट्रक्चर में जाओ। हाँ, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में जाओ ना, स्ट्रक्चर में। ओके, मैं देखना चाहता हूँ कि उसने कॉलम ये क्या लिया, डेटा टाइप क्या लिया। अच्छा अच्छा, हमने तो उसको डेटा टाइप दिया नहीं ना। नहीं दिया ना, उसने क्या किया, सिर्फ कॉपी कर लिया, जो भी एग्जिस्टिंग लेसन का जो डेटा टाइप था ना, उसको पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, हम्म। बिकॉज बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड दिस डीएफ ना, और डीएफ में पूरा इंफॉर्मेशन है, डीएफ में पूरा इंफॉर्मेशन है, अगर आप डीएफ डॉट डिस्क्राइब करोगे तो यू विल हैव डेटा टाइप्स, डीएफ डॉट इन्फो करोगे तो यू विल बी हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन, डीएफ डीएफ डॉट इन्फो, इसमें आपको पूरा ठीक है, उसने इंफॉर्मेशन। इंटीजर वैल्यू को हाँ, इंटीजर वैल्यू को इंटीजर लिया, बाकी सबको टेक्स्ट लिया। यस यस यस, ये सब टेक्स्ट ही है एक्चुअली, ऑब्जेक्ट क्या है, टेक्सचुअल हाँ वैल्यू डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब। यस, नहीं, शायद अमोल तू ये बोलना चाह रहा है ना कि उसने एज यूजुअल जैसे डेट टाइम ये जैसे बिग इंट वैसे नहीं लिया, उसने सीएसवी से टैक्स और इंटीजर को बाइफरगेट कर दिया, ऐसा बोल रहा है ना? हाँ हाँ, मतलब डीएफ के अंदर हमने तो यहाँ पे टेबल नहीं बनाया था, टेबल क्या है यस। उसको कितने गजर टाइम लेने का है, हाँ, बिग तो इंट लेने उसने का है, सिर्फ वो आई उसको थिंक। हाँ तो बाइफरगेट कर दिया। इंटीजर है, इसके लिए उसने इंटीजर लिया। हाँ। यस। एक काम करता हूँ, इसको डिलीट मार दूं क्या, यस। बिग इंट, इसको डिलीट मार दूं नहीं नहीं नहीं। क्या? नहीं नहीं, हम हाँ लोग ने क्या समझा, नहीं नहीं गोरख, हाँ एक्चुअली हाँ हमें पता चला कि हम जैसे अभी टू एसक्यूएल करते हैं ना, हाँ हाँ, तो ओके, उसने क्या किया, जब अपन ने सिर्फ डेटा लिया डेटा फ्रेम के लिए बरोबर, हाँ हाँ, पर जब हमने डेटा कॉपी किया यस यस सिरिल, देयर वाज सम नेटवर्क कनेक्शन, या सब, ओके ओके, गौरव, हाँ प्रोसीड करते हैं आगे। फाइन फाइन। तो यस गाइस, वी कैन देन, आई होप के
even 9:14 हो गए, and I hope like we can now stop here, and then we will meet in our next session, which is on Thursday. So thanks guys, thanks for being here. We will meet again in our next session. Okay, fine. Thank Thank you. you. Thank you. गौरव को रिकॉर्डिंग डाल देना मैंने. Yes, definitely. Yeah, sure. Thank you.